recorded. I'm Dr. Nupur from Well Women Clinic, helping women achieve their health goals for more than 2 decades. If you have been looking for an experienced and ethical gynecologist for you or anyone in your family, you know where to ring the bell for their better health. Our topic for Facebook Live today is dental health in pregnancy, problems and solutions. As you all know, the dental or oral health is health of your mouth, teeth and gums. It is an important part of your overall health. And if you are pregnant, it is an important part also of your prenatal care. Being pregnant can increase your risk for oral health problems that can affect your pregnancy as well as newborn. Hormones change quite a bit during pregnancy, causing not only fatigue and mood changes but also changes in your oral health. If you experience sensitivity or bleeding, swollen gums during pregnancy, you might be experiencing what is called pregnancy gingivitis. A rapid increase in hormones like estrogen and progesterone also increase the blood flow to your gums. And hormonal changes also have the ability to impact the way the body fights infection. Because of this, it is crucial to maintain a good daily oral health habits and regular dental visits during your pregnancy, for which we have with us Dr. Major Meenakshi today. Welcome, Dr. Meenakshi. Thank you, Dr. Nupur. Thank you for inviting me. I'm sure it would be very, very informative for the would-be mothers. So Dr. Meenakshi is a dental surgeon with over 24 years of experience. She has been bestowed with the Chief of Army Staff Commendation Award for her meritorious services. Her main USP is zero waiting time, and she believes in quality, affordability and responsibility under one roof. She brings to you the very best, and you can be assured that at her clinic she will listen and take care of your needs in a relaxed environment. She strongly believes in give the world the best you have and the best will come back to you. So welcome, Dr. Meenakshi. Thank you. Thank you, Dr. We will start with the first question to you. Dr. Meenakshi, ये dental health क्या है और क्या common problems हैं dental problems during pregnancy जो कि आप देखते हैं? देखिए, दांत का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है. दांतों का अब हम अगर इसको कहें कि मौखिक स्वास्थ्य भी इसको कहा जाता है. आपके मुंह, दांतों और मसूड़ों का स्वास्थ्य है और ये आपने संपूर्ण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. गर्भवती महिलाओं को दांतों में कीड़ा लगने की और मसूड़ों की सूजन के विकास की अधिक खतरा होता है. तो ये जो कैविटीज हैं और गम इन्फ्लेमेशन है, ये ज्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर में पाई जाती हैं और इसके बड़े सिंपल से लक्षण होते हैं. ब्लीडिंग गम्स में होती है, सूजन हो जाती है गम्स की, ब्रशिंग के दौरान और दांतों के बीच फ्लॉसिंग होने के टाइम भी ब्लीडिंग होती है. और यूजुअली हम कहते हैं कि कई बारी मसूड़ों की सूजन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो छोटे छोटे आपको अलग से एनलार्जमेंट्स दिखती हैं. तो इसी चीज को जिंजिवाइटिस कहा जाता है क्या, डॉक्टर मीनाक्षी? जो नॉर्मल इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं. अगर ये जिंजिवाइटिस को हम नहीं देखभाल कर सकते तो ये एक्चुअली पेरियोडोंटाइटिस में चेंज हो जाती है. दैट मीन्स it has gone into the bone of into the bone of the mouth and उसमें थोड़ा सा उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन होना शुरू हो जाता है. अगर उसको भी हम नहीं उस within the 9 months टेक केयर करते तो कई बारी हार्मोनल चेंजेस की वजह से pregnancy gingivitis can turn into pyogenic granuloma. That means pus starts coming in the mouth. तो प्रेगनेंसी दांतों और मसूड़ों को कैसे अफेक्ट करती है डॉक्टर मीनाक्षी? जैसा आपने बताया कि हार्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स एक्सेसिव हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, तो क्या यही एक रीजन है कि प्रेगनेंसी में ये एग्रेवेट हो जाती है या फिर कई बार कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है? प्रेगनेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट है हमें अपने
मीठा खाने को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, क्योंकि इससे कई बार ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाती है, विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, ऑल्सो कॉल्ड एज जेस्टेशनल डायबिटीज। और ऑल द मोर रीजन हम कहते हैं कि दांतों की देखभाल करें, क्योंकि ज्यादा मीठा खाएंगे तो ज्यादा कैविटीज होने का डर होता है। और कोशिश करें कि जो ये चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स और पेस्ट्रीज एंड केक है, इसकी जगह हम फ्रूट्स खाएं या स्मूदीज बनाएं। स्मूदी ले हर लें। कुछ हाँ, घंटे में अगर हमें क्रेविंग होती है तो हम स्मूदीज बना सकते, हाँ, मैंगो, और एप्पल, हम, बनाना, हाँ, दे आर और ये ऑलवेज अवेलेबल। हाँ, और जो ये एरेटेड ड्रिंक्स हैं इसका इंटेक भी कम कर दें। पर अगर इनफैक्ट हम कोल्ड ड्रिंक्स प्रेगनेंसी, की जगह, हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स की जगह, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह लस्सी पिए, हाँ पानी हाँ, पिए, नारियल पानी लें। ये थोड़ा सा आपका एसिडिटी जो पेट में बन रही है उसको भी हाँ थोड़ा हाँ, ठीक रखता है, प्लस हम्म। दे आर ऑल न्यूट्रिशनल फूड। तो डॉक्टर मीनाक्षी, जैसे आपने बताया कि एक तो हॉर्मोन्स का इन्फ्लुएंस है प्रेगनेंसी में, फिर ये जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो रहा है इससे भी बढ़ जाता है, या फिर प्रेगनेंसी में कोई एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज है, तो वो भी दांतों के इन्फेक्शन को या उसकी ग्रेविटी को बढ़ा सकता है। तो किसी भी प्रेग्नेंट वुमन को कैसे पता चलेगा कि उसके गम डिजीज हो रही है प्रेगनेंसी में? उसके लिए क्या सिम्टम होगा उसे? डायबिटीज में प्रेगनेंसी तो में जो गम बहुत ही डिजीज ज्यादा होती है, ध्यान हाँ, रखने की जरूरत है, क्योंकि डायबिटीज डायबिटीज जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको और भी ज्यादा थोड़ा देखभाल रखने की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम कंट्रोल करना क्रेविंग को स्पेशली। हाँ, तो बहुत सारे प्रेग्नेंट women को कुछ ना कुछ डेंटल प्रॉब्लम देखी गई है प्रेगनेंसी के टाइम। आई थिंक ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ प्रेगनेंसीज हैव सम डेंटल इशू। तो आपके हिसाब से अगर ये ट्रीटमेंट या ये चेकअप प्रायर टू प्रेगनेंसी हो जाए तो हम ये बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, और बहुत सारे डेंटल प्रोसीजर्स जो कि अवॉइड करते हैं वो हमें करने नहीं पड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है क्या गम डिजीज कैन अफेक्ट द बेबी एज तो वेल? हम यूजली कहते हैं कि डेंटल चेकअप अगर हम बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी करवाते रहें, तो हमारी जो मेजर डेंटल इश्यूज हैं वो थोड़े कंट्रोल में रहेंगे। और बिफोर में अगर करवाएं तो आपके 9 महीने बहुत ही अच्छे और सुखद जाएंगे। अच्छा, बिफोर तो में हम डॉक्टर क्या करते मीनाक्षी, हैं, हाँ हाँ, बेसिकली हम पेशेंट की जितनी छोटी छोटी कैविटीज होती हैं उनको भर देते हैं। कोई आरसीटी के लायक दांत होता है, आरसीटी उस टाइम कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन होती है प्रायर प्रेगनेंसी, हम उनको भी निकाल देते हैं, ताकि प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोनल चेंजेस की वजह से विजडम टूथ पेन ना हो। अच्छा, नॉर्मल तो क्या स्केलिंग हो ये सकती है, जो, ताकि आपके जो हाँ मसूड़े हैं वो स्वस्थ रहें आपके 9 महीनों में। हाँ, तो जो गम चेंजेस हैं, जो जिंजिवाइटिस है, उसका बेबी पर क्या इफेक्ट हो सकता है? तो डॉक्टर मीनाक्षी, हम बहुत बार देखते हैं कि गम डिजीजेज हैं, जिंजिवाइटिस है, और अगर ये राइट टाइम पे ट्रीट नहीं हुआ और डिटेक्ट नहीं हुआ तो कई बार प्रेगनेंसी में प्री मैच्योर डिलीवरी का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो एक डेंटल अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी मैंडेटरी, ताकि हम राइट टाइम पे इसको डायग्नोस कर लें और ट्रीट कर लें, और हमें ऐसी प्रॉब्लम में ना आना पड़े जिसमें कि बहुत एक्सटेंसिव डेंटल प्रोसीजर करने पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यूजुअली डेंटल हम एक्सरे करने की ज़रूरत है प्रेगनेंसी में, तो हाउ सेफ इट इज़? डेंटल एक्सरेज आर वेरी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूजुअली एक धारणा है कि डेंटल एक्सरे सेफ नहीं होता, लेकिन अगर डेंटल एक्सरे हमें करना पड़ता है तो डॉक्टर पूरी तैयारी से, डेंटिस्ट पूरी तैयारी से डेंटल एक्सरेज करते हैं, और एक एप्रन या एक कॉलर मदर और चाइल्ड को सेफ रखने के लिए दिया जाता है और एक्सरेज किए जाते हैं। अच्छा,
तो डॉक्टर मीनाक्षी, आप जैसे बता रहे थे कि बहुत क्रेविंग होती है, पर बहुत बार क्रेविंग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में अपने दांतों को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए, और क्या वो ब्रशिंग की टेक्निक है, आप उस पर थोड़ा हाईलाइट करें। देखिए, क्रेविंग हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि मीठा जो है, स्पेशली जो चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स, पेस्ट्रीज, जो भी चिपचिपी जो चीजें होती हैं, उनकी जगह आप स्मूदीज ले लें, फ्रूट्स ले लें। और दूसरा, ब्रशिंग बार बार पेस्ट लगा के करने की जगह आप सिंपल इस तरह के ब्रशेस मार्केट में आते हैं, इनको हम बेबी ब्रश कहते हैं। सिलिकॉन ब्रश होता है, आप उंगली में डालकर आराम से मुंह में ब्रश कर सकते हैं। इसमें आपको पेस्ट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपको वो गैगिंग वाली फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि आपकी अपनी उंगली दांतों को क्लीन कर रही होती है। और बेस्ट है गुनगुने पानी के साथ अच्छी तरह से माउथ रिंस करें, जिससे थोड़ा सा एसिडिक, जो एसिड माउथ में आया हुआ होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो डॉक्टर मीनाक्षी, जैसा कि आपने बताया कि डेंटल एक्सरे भी कुछ कुछ कंडीशंस में सेफ हो सकता है और हमें क्रेविंग से बचना चाहिए, पर इस प्रॉब्लम में हम ना पड़े तो प्री नेटल चेकअप, जो प्री प्रेगनेंसी या प्री कंसेप्शन केयर का पार्ट है, क्या वो करने से इन सब प्रॉब्लम से डिले या बचा जा सकता है? डेफिनेटली, डेफिनेटली। अगर हम प्रेगनेंसी से पहले ही एक बारी डेंटिस्ट को विजिट करें, जो इनवेरिएबली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, दे कम अंडर गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ, तो आपका कहने का मतलब है कि अगर डेंटल एग्जामिनेशन प्रायर टू प्रेगनेंसी हो जाए, या जो कैविटीज हैं, जो रूट कैनाल की ज़रूरत है, इफ़ ऑल दिस कैन बी डन प्रायर टू गेटिंग प्रेग्नेंट, जैसे कि मोस्ट ऑफ देम विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे ही एक डेंटल चेकअप करने से वी कैन अवॉइड सो मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेंटल एक्सरे हमको अवॉइड करना है, बट डज नॉट मीन कि हमें डेंटल चेकअप को रोकना है। अगर ज़रूरत है तो डेंटिस्ट को दिखाना मैंडेटरी है। और अगर हमें गम डिजीज़ है, जैसा डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया, तो गम डिजीज़ के लिए भी चेकअप करना अच्छी बात है। तो डॉक्टर मीनाक्षी, हम इस पर थे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या करना चाहिए, एंड वी हैव रीच्ड की मॉर्निंग सिकनेस अगर कंट्रोल होगी तो ये मॉर्निंग सिचुएशन सिकनेस, विल बी यस, बेटर मॉर्निंग अंडर सिकनेस कंट्रोल। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो मॉर्निंग सिकनेस में यूजली हम कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी के टाइम मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये डेंटल इश्यूज को बढ़ा सकती है। वॉमिटिंग से पेट का जितना एसिड है जो मुंह में आता है, यदि ये एसिड जल्दी से साफ ना हो पाए, तो इससे दांतों में कैविटीज बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसको दूसरा, प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस को कंट्रोल करने के लिए तो बेस्ट है कि एक बारी पूरी दांतों की सफाई हो जाए, तो आपका जो गम इन्फ्लेमेशन है या जिंजिवाइटिस है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो और कौन सा टूथपेस्ट यूज करना अच्छा रहेगा इस टाइम पर? फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट बेस्ट होता है, बिल्कुल थोड़ा सा लीजिए, क्योंकि कई कई फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट से भी गैगिंग शुरू हो जाती है। सो आप नॉर्मल ब्रशिंग कर सकते हैं बिना कोई टूथपेस्ट के साथ। उसके बाद एक अच्छी तरह से माउथ रिंस कर लीजिए, किसी भी आप अच्छे जो आपके बाजार में आते हैं, जो छोटे फ्लोरिडेटेड अल्कोहल फ्री माउथ वॉशेस जो आते हैं, तो आप उनके साथ अच्छी तरह से क्लीन कर सकते, ताकि मुंह में थोड़ी खुशबू रहे और आपको वो बार बार वॉमिटस वाली स्मेल ना आए। तो डॉक्टर मीनाक्षी, ये जो टूथब्रश करना चाहिए, ये दिन में कितनी बार टूथब्रश करना चाहिए कि हम डेंटल डिके या जो डिपॉजिट्स हो जाते हैं उसको अवॉइड कर पाए? आइडियली 2 बारी,
अच्छा, सिर्फ 2 ही बार करना चाहिए जी। अच्छा। और नाउ वी कम टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम कहते हैं कि अवॉइड ईटिंग शुगरी स्नैक्स। सो शुगरी स्नैक्स की जगह आप, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट यू कैन ईट मखानाज। मखानाज आर फुल ऑफ कैल्शियम and they will help in the growth of the baby as well, help the mother's health also. और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम मैक्सिमम ट्रीटमेंट करते हैं so that the third trimester goes very smoothly. But there is always, sometimes we need to check on this also, that third trimester mein, if you have any kind of, pregnancy related issues, they need to be taken care of. Because high risk pregnancy में यूजली हम कोई डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और उस टाइम हम ना मेडिकेशन दे पाते हैं। सो हम कहते हैं कि क्लीनलीनेस इज द बेस्ट, क्लीनलीनेस ऑफ द टीथ इज बेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो डॉक्टर मीनाक्षी, अब डिलीवरी हो गई है, तो डिलीवरी के बाद व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट योर ओन डेंटिस्ट? Immediately after delivery. Okay. Immediately after delivery, you should visit your dentist. And at the same time, you should get all your silver fillings removed. Get into simple, get composite fillings, because silver has mercury in it. और mercury जो होता है कई बारी breast milk से high concentration में baby को भी चला जाता है। तो डॉक्टर मीनाक्षी, आज हमने बहुत सारा डिस्कशन किया रिगार्डिंग डेंटल हेल्थ इन प्रेगनेंसी एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इफ़ वी आर एबल टू लुक आफ्टर आवर डेंटिशन एंड टीथ prior to pregnancy, lot of complications can be avoided. We also get lot of calls ki our dentist has recommended tooth extraction or this dental procedure, yeah, root canal, so should I go for it? And they are also afraid of taking antibiotics, although there are safe antibiotics that can be given during pregnancy. But yes, certainly this is a preventable thing which can be looked after prior. So what is your take home message for today? आप सब व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी कि डेंटल हेल्थ का अपना ध्यान कैसे रखें? सिंपल, आप अपने दांतों को साफ रखिए, फ्लॉसिंग कीजिए, इंटरडेंटल ब्रश के साथ क्लीन कीजिए, और थोड़ा सा मसूड़ों को हल्की सी मालिश कीजिए ब्रशिंग के टाइम। गुनगुने पानी से रिंजिंग कीजिए, उससे गम्स काफी कम डाउन हो जाते हैं। एंड कीप अ वॉच कि कोई कैविटी ना फॉर्म हो, और स्टिकी फूड ना ज्यादा खाएं, क्योंकि प्लैक एक्यूमुलेशन होने की वजह से कैविटीज बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और जितना कैल्शियम और कैल्शियम मिल्क प्रोडक्ट्स आप खा सकते हैं वो आप लीजिएगा। विटामिन सी लीजिए जो आपके गम्स के लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा भी होता है। और वैसे भी विटामिन सी इन दिनों में ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपके वॉमिटिंग वाली फीलिंग को थोड़ा सा दबा कर रखता है। So thank you so much, Dr. Meenakshi, for coming live with us and discussing a very important topic related to dental issues in pregnancy. So see you till next time. Thank you so much. Thank you.